السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 41%، ترسیلات زر، مینوفیکچرنگ اور آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ، ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 8.8% کمی۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں ترسیلات زر 24 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، ٹیکس وصولیوں میں 25.9% اور نان ٹیکس آمدنی میں 75.8% اضافہ۔ پاکستان کی صنعتی برآمدات کا عالمی سطح پر فروغ، پاک الیکٹران لمیٹڈ کے ٹرانسفارمرز کی پہلی کھیپ امریکہ روانہ، کمپنی کی عالمی سطح پر ترقی کے لیے معروف بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ شراکت داری، سرمایہ کاری اور صنعتی خوشحالی کے ذریعے معیشت کا استحکام، SIFC کا مشن۔ معاشی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا اعتماد، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 193 پوائنٹس کا اضافہ، 1,16,673 پر بند، مارکیٹ میں 19 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ملاقات، ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی، 2024 میں ریکارڈ 2,26,000 سے زائد شکایات موصول، 2023 کی نسبت وفاقی محتسب کو 17% زائد شکایات موصول ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، 1,275 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے 13 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، ٹرانسپورٹ، مواصلات، ریلوے، خلائی ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شامل، سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے اقدامات کی بھی منظوری۔ پنجاب میں زرعی انقلاب کے منصوبے، کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹرز، کسان کارڈ، سپر سیڈر کی فراہمی، گندم کے کاشتکاروں کے لیے 1,000 مفت ٹریکٹرز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے قرآن اندازی کی، پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کا نکلا، 3 ماہ کے اندر تمام کاشتکاروں کو ٹریکٹرز کی فراہمی شروع ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ حکومت گرین انرجی کے فروغ کے لیے پرعزم، ملک کے پہلے فاسٹ EV چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح، الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے کیا گیا، بجلی کے نرخوں میں مزید کمی کی جائے گی، نجی شعبہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے، گرین اور صاف توانائی مستقبل ہے، وفاقی وزیر اویس لغاری۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ وفات پا گئیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مرحومہ کے بلندی درجات کی دعا۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر دفاع، وفاقی وزراء، گورنرز، وزراء اعلیٰ کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کی مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا، ماں جیسی عظیم ہستی کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس، دوہری ملازمت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افسران کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت، سرکاری افسران اور اہلکار عوامی مسائل کے حل پر توجہ دیں، جو افسران یا اہلکار کام نہیں کرتے انہیں گھر بھیج دیا جائے گا، دہشت گردوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ ریاست مخالف مہم اور حساس سرکاری ڈیٹا لیک کرنے کا معاملہ، ملزم انس نواز کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، ملزم نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیٹا بیس تک غیر قانونی رسائی حاصل کی،
शहरियों के जाती पासपोर्ट्स और आला सरकारी शख्सियात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां, जबरी गिरफ्तारियां, इलाके में खौफ और दहशत का माहौल। सानेहाए पथरी बल को 25 बरस बीत गए, मुतासरा खानदान तवील अरसा गुजरने के बावजूद इंसाफ के मुंतजिर। पथरी बल जाली मुकाबले के मुतासरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। काबिज सियोनी फोर्सेज की गजा पर जारियत जारी, 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, शोहदा में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद शामिल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, 1 लाख से ज्यादा जख्मी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रजाकाराना वापसी में 7 दिन बाकी, मुकर्ररा तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,194 तक पहुंच गई। अफगानिस्तान मनशियात का गढ़ और दहशत गर्दी का मुआवन। तालिबान के जेर कब्जा मुल्क मेथ, हेरोइन और अफ्यून की काश्त का बड़ा मरकज। मनशियात के धंधे से मुंसलिक अफराद हथियारों, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस। मनशियात की आमदन से तालिबान असलहे की गैर कानूनी तिजारत को फरोग दे रहे हैं। खित्ते को संगीन खतरात लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा मनशियात और जराइम की रिपोर्ट। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 5वां और आखिरी मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी। न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज के लिए 13 रुकनी टीम का ऐलान। टॉम लैथम क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास भी कीवी स्क्वाड का हिस्सा। 3 मैचेस की एक रोजा सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। पहला मैच नेपियर में खेला जाएगा। सीरीज के दीगर मैचेस 2 और 5 अप्रैल को होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी का सफर जारी। मुख्तलिफ तारीखी मकामात पर नुमाइश। एशिया की सबसे बड़ी नमक की कान, केवड़ा और कदीम सयाहती मकाम कटास राज का भी सफर। इस्लामाबाद में 360 फीट बुलंद हेलीपैड पर ट्रॉफी की नुमाइश। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। नाज़रीन, मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41%, तरसीलात ज़र, मैन्युफैक्चरिंग, IT बरामदात में इजाफा, जबकि महंगाई की शरह में माहाना बुनियादों पर 8% कमी हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई में कमी, तरसलात ज़र और मालियाती इस्तेहकाम के बायस मईशत में बेहतरी देखने को मिली है। माली साल 2024-25 के इब्तदाई 8 माह में बैरून मुल्क से भेजी गई तरसलात ज़र 24 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जबकि फरवरी के महीने में यह रकम 3.1 अरब डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक फरवरी मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी अरसे के दौरान बरामदात का हुजम 21.8 अरब डॉलर हो गया है। जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा 691 मिलियन डॉलर रहा। मौशी रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। जुलाई तक फरवरी टैक्स वसूलियों में 25.9% इजाफा हुआ है। इसी अरसे में नॉन टैक्स आमदनी में 75.8% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.8% कमी रिकॉर्ड हुई है।
मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में चैलेंजेस के बावजूद बेहतरी देखने में आई है। गाड़ियों की पैदावार में 41.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई में कमी के बायस मौशी सरगर्मियां मजीद तेज होने का इम्कान है। मौशी तज्जियाकारों के मुताबिक पॉलिसी इस्लाहात और इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान की मईशत मुस्तकबिल करीब में मजीद बेहतर होने की तवक्को है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। SIFC के ताउन से पाकिस्तानी सनती बरामदात के फरोख का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अपनी मसनूआत की बरामदात का आगाज कर दिया है। पेल के ट्रांसफार्मर्स की पहली खेप रवा माह 13 मार्च को पाकिस्तान से अमरीका रवाना हुई थी। कंपनी ने आलमी सतह पर तरक्की के लिए हिटाची, फौजिस्तो और जनरल इलेक्ट्रिक समेत कई मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनीज के साथ शराकतदारी कायम की है। SIFC का मिशन जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सनती खुशहाली के जरिए पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है। और कारोबारी दिन के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 193 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,633 पर बंद हुआ। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी मोहतसिब इजाज अहमद कुरैशी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी मोहतसिब ने सदर मुमलिकत को इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मोहतसिब को 2024 में रिकॉर्ड 2,26,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। वफाकी मोहतसिब को साल 2023 के निस्बत 17% ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के ज़ेर कफ़ालत यतीम बच्चों के वाने सदर में इफ्तार डिनर के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों और खुशियों में यतीम बच्चों को शामिल करने के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देकर कामयाब इंसान बन सकते हैं। सदर मुमलिकत ने बच्चों को मुखातिब करके कहा कि आप सब मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हैं। उन्होंने कहा कि खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के मशवरे पर आपको कंप्यूटर टैबलेट्स का तोहफा दे रहा हूँ। तमाम बच्चे कंप्यूटर टैबलेट्स को तालीम हासिल करने और सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तकरीब से पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक हबीब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 46 लाख यतीम बच्चे हैं। पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम और इससे मुंसलिक इदारे मुल्क भर में 1,20,000 के करीब बच्चों की किफालत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबों के मुतल्लिका वज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में 1,275 अरब रुपए से जायद लागत के 13 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट, मवासलात, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और अवामी बुनियादी ढांचे समेत अहम शोबे शामिल हैं। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान में मौशी तब्दीली और सिंध में सैलाब से बहाली के इक़दामात की भी मंजूरी दी। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से आला सलाहियत वाली वैगनों और मुसाफिर कोचेस की खरीदारी, पाकिस्तान का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट और सड़क के कई बड़े मंसूबे भी मंजूर किए गए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने पायदार तरक्की, बैनुल-सूबाई राबते और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में निजकारी काबीना कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए एक तेज रफ्तार मंसूबे की मंजूरी दी, जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ 51 से 100% हिस्से की डी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी के लिए हुकूमत के आज़म पर जोर दिया ताकि इसकी मुकम्मल सलाहियत पुरकार लाई जा सके और कौमी खजाने पर माली बोझ कम हो सके। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में बैनुल वज़ारती इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आज़रबाईजान के साथ सरमायाकारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौशी तरक्की के लिए किए गए फैसलों पर अमल दरामद तेज किया जाए ताकि काबिल अमल मंसूबों में सरमायाकारी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आला पंजाब गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत सूबे में गंदम के काश्तकारों के लिए 1,000 मुफ्त ट्रैक्टर्स मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। कुरानदाजी में पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ है और इंशाअल्लाह इस साल गंदम की फसल अच्छी होगी। गंदम उगाओ मुहिम में 57,733 से ज़्यादा काश्तकारों ने अप्लाई किया। जांच पड़ताल के बाद 21,496 काश्तकार कुरानदाजी के लिए अहल करार पाए।
कुरानंदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स मुफ्त दिए जाएंगे। नाज़रीन, कारोबारी दिन के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। दिन के ख़त्म पर 100 इंडेक्स 193 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,633 पर बंद हुआ। तफसील शेयर कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बदस्तूर जारी है। स्टॉक मार्केट में इजाफे की बड़ी वजह हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि बिजली की कीमतों में कमी हो। IMF से मुतवक्का मुआहदे, बरामदात में इजाफा, जबकि माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट में हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ और उन्हें दुरुस्त सिमत में करार देना अहम अवामिल हैं। बाजार हिस्स में 26 करोड़ 80 लाख 98 हज़ार से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 19 अरब 45 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 155 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 214 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 67 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में आज सबसे ज़्यादा इजाफा फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, ऑयल एंड गैस कंपनीज और बैंक्स के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों के शेयर्स में हुआ। 100 इंडेक्स में बतदरीज इजाफा इस बात की निशानदही कर रहा है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ मुस्बत सिमत में गामजन हैं और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार स्टॉक मार्केट के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्चुअल सदारत में हुआ। वज़ीर ख़जाना बाओ फोरम में शिरकत के लिए चीन में मौजूद हैं। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख और दूसरे आला हुकाम ने शिरकत की। ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से रेकडिक प्रोजेक्ट और इसके तरक्याती मनसूबे में तब्दीलियों के हवाले से समरी पर गौर किया। ECC ने समरी में शामिल तजावीज़ की मंजूरी दी। ECC ने रेकडिक प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और इसे इंतहाई कौमी अहमियत का मनसूबा करार दिया। ECC ने स्कर्दू में PSB कोचिंग सेंटर की तामीर के लिए 200 मिलियन रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट चार्जिंग EV स्टेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान की पायदार तवानाई की जानिब एक अहम संग मील है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए कर दी गई है, जिससे आवाम के लिए बरकी नकलो हमल ज़्यादा काबिल रसाई और सस्ती हो गई है। सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पास्को से मुतालिक इजलास में गंदम के ज़ख़ायर और इदारे के माली मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गंदम के ज़ख़ायर और माली मामलात में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पास्को के माली उमूर के मौसर इंतज़ाम और गंदम के ज़ख़ायर की बर वक्त और शफाफ तरीके से फ़राहमी के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इजलास में सरमायाकारी को बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की जानिब राग़िब करने के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक कारोबारी सहूलत मरकज़ की बुनियाद रखी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में मॉनिटरिंग के मौसर निज़ाम, शिकायतों के अज़ाले और सारिफीन की तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने आवाम की फलाह और सूबे की बेहतरी के लिए हर शोबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम की ताकत से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़रा और अफसरान की कारकर्दगी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा है कि सेहत का शोबा मसाइल और पेचीदगियों का शिकार है, जिनके हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमजान निगहबान पैकेज प्रोग्राम के जरिए 30 लाख खानदान मुस्तफीद हुए हैं। परवरदिगार ने मरियम नवाज साहिबा को सुरखरू किया कि 30 लाख खानदानों तक जो है वो 10,000 रुपए की जो पे ऑर्डर्स हैं वो पहुंचाए गए और हर एक के घर पे जाकर नॉक करके इज्जत के साथ वो उनको दिए गए। अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहाँ से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाने चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए। वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो।
सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौजी जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी के नासूर से जल्द जान छूट जाएगी। हमारे लोग जाने दे रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, और वो अपनी शहादतें यकीनन पाकिस्तान में अमन लाने के लिए ही कर रहे हैं। और ये दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ के जीत भी ली थी, लेकिन एक मौसूफ आए, उन्होंने हमारे पे ये दहशतगर्दी की जंग जो अच्छी खासी है जिससे हम बाहर निकल गए थे, उसको दोबारा जो है फैसिलिटेट कराया और आज हम उससे भुगत रहे हैं। इससे कबल सूबाई वज़ीर इत्तलात ने अलहमरा हॉल में खताती की नुमाइश का दौरा किया और पंजाब आर्ट काउंसिल से तरबियत हासिल करने वाले तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। सदर और वज़ीर आज़म ने जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ वरसा के साथ हैं। हम सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूमा के लिए बुलंदी दराजात की दुआ की। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, सरदार अयाज सादिक, कामरान खान टिसोरी, मरियम नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, इंजीनियर अमीर मकाम, अलीम खान, वजीहा कमर और दीगर वज़रा ने मरहुमा की मग़फ़िरत और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती का इस दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं है। इंसाफ की फ्राहमी के अमल में बेहतरी लाने और इस तक रसाई बढ़ाने की कोशिशों के सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों से इस्लामाबाद में मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदलिया में इस्लाहात का जायजा लिया और डिजिटाइजेशन, अदालत तक रसाई और इंसाफ की फ्राहमी के अमल में शफाफियत बढ़ाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया इस्लाहात का मकसद महज ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाना नहीं, बल्कि साइलिन को मौसर और फौरी इंसाफ की फ्राहमी है। इजलास में मुकदमात की ई फाइलिंग के तरीक़ाकार के निफाज को अहम संग मील करार दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 रोज बाकी हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस आने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी किए गए हैं। तालिबान के ज़रिए असर अफगानिस्तान मनशियात का गढ़ और दहशत गर्दी का मावन बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के ज़रिए कब्जा अफगानिस्तान मेथ, हेरोइन और अफ्यून की तैयारी का बड़ा मरकज़ है, जिससे तालिबान को माली फ़ायदा हो रहा है। मनशियात की सनत से जुड़े अफराद हथियार, इंसान और मनशियात स्मगल करने में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में खुश्क अफ्यून की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई हैं, जबकि स्मगलिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श है। मनशियात की आमदनी से तालिबान असलहे की गैर कानूनी तिजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। तालिबान की नाम निहाद पाबंदी के बावजूद मनशियात की स्मगलिंग दुगनी हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफगानिस्तान में बढ़ती मनशियात की काश्त पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तों पर समाअत मुल्जिमान के वकील की गैर हाजिरी की वजह से ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने दरखास्तों पर एतराज़ात के साथ समाअत की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई को 14 साल कैद, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्मानों की सजा का फैसला सुनाया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सानिया पथरी बल के मुतासरा खानदान 25 बरस का तवील अरसा गुजरने के बाद भी इंसाफ से महरूम है। KMS के मुताबिक भारतीय काबिज फोर्सेज ने 25 मार्च 2000 को जिला इस्लामाबाद के इलाके पथरी बल में एक जाली मुकाबले में 5 शहरियों को गैर मुल्की अस्करियत पसंद करार देकर शहीद कर दिया था। इन 5 अफराद को 20 मार्च सन 2000 को उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर जिला इस्लामाबाद के इलाके छोटे सिंहपुरा में भारतीय फौजियों के हाथों सिख बरादरी के 35 अफराद के कत्लेआम के बाद मावराए अदालत शहीद किया गया था। ताहम बाद में तहकीकात में साबित हुआ कि हलाक होने वाले मकामी मजदूर थे। भारतीय काबिज फोर्सेज ने दूसरे दिन बराकापुरा में पथरी बल सान्हे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे पर फायरिंग करके मजीद 8 शहरियों को शहीद कर दिया था। पथरी बल जाली मुकाबले के मुतासरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से सान्हे की तहकीकात का मुतालबा किया। भारतीय फौजियों ने जिला कठुआ में आज मुसलसल तीसरे रोज भी मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। भारतीय फौज, पहला मिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एहलकार कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उन्हें फौजी कमांडोज, ड्रोन्स और सुराग रसां कुत्तों की भी मदद हासिल है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारतीय फौजियों की तरफ से तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहरियों को हिरासत करने की शदीद मजम्मत की है। पार्टी ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई
कार्रवाइयों, छापों और जबरी गिरफ्तारियों में इजाफे का मकसद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना है। उधर काबिल से होनी फोर्सेस की गजा पर जाहरियत बदस्तूर जारी है। शहीद होने वाले मजलूम फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, जबकि जख्मियों की तादाद 1 लाख से जायद है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर ताज़ा हमलों में 2 सहाफ़ियों समेत 60 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शुहदा में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद शामिल है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 730 फलस्तीनी शहीद जबकि 1367 जख्मी हो चुके हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने गजा में इसराइली फौज के हमलों में 2 सहाफ़ियों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। 24वें रोज़े की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में उलमाए कराम ने मियाँ बीवी की जिम्मेदारियों और कामयाब शादी के मौजू पर गुफ्तगू की। इमरान उल हक कल्याणवी ने मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताए। तफसील सैयद जहांगीर अली से। 24वें रोज़े की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। बाद में नादे रसूल मकबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। नशियात में उलमाए कराम अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी और डॉक्टर अहमद कादरी ने दीन इस्लाम में मुआशरे में मियाँ बीवी और कामयाब घरेलू ज़िंदगी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के बारे में बताया। ट्रांसमिशन में अदाकारा महा ताहिरानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और मेज़बान एहसन खान और जुगन काजिम के साथ बच्चों को सबक आमूज़ कहानी सुनाई। नशियात में कफ़ालत के सेगमेंट में गरीब और नादरा ख़ानदान की मदद की गई, जबकि क्विज़ के मुकाबले में अगले राउंड के लिए कामयाब होने वालों को इनामात दिए गए। शेफ मुनिज़्ज़ा ने मज़ेदार खाने की डिश बनाई, जबकि इमरान उल हक कल्याणवी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ बताए। डॉक्टर बिल्किस शेख ने सेहतमंद टोटके भी बताए। ट्रांसमिशन के आखिर में अज़ान मगरिब दी गई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से एथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत तिजारती, इक़्तिसादी, पार्लिमानी और सकाफ़ती रवाबित पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और एथोपिया के तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। एथोपियन सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक की पार्लिमानों के दरमियान राब्तों में इजाफा 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के कानूनी फ्रेमवर्क के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में यूनिवर्सिटी के इंडोवमेंट फंड के क़याम पर भी गुफ्तगू हुई, जिसका मकसद माली मुश्किलात के शिकार होनहार तलबा को मयारी और आलमी सतह की तालीम फराहम करना है। वज़ीर कानून ने कहा कि इस तालीमी इदारे के क़याम के लिए दुनिया भर के कामयाब तालीमी मॉडल्स का जायज़ा ले रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी एक खुद मुख्तार इदारा होगा जिसका इंतज़ाम गैर हुकूमती तर्ज पर चलाया जाएगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत नेशनल कंप्लायंस सेंटर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में NCC की पेशरफ्त और वर्ल्ड बैंक मिशन के हालिया दौरे का जायजा लिया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने NCC को तिजारती मयार और मुसाबकत बढ़ाने के लिए नए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। इजलास के लामिया के मुताबिक नेशनल कंप्लायंस एडवाइजरी काउंसिल का इजलास अप्रैल के वस्त में होगा। सियासी उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरी रिवायात के फ़रोग़ से ही मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन है। मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी इदारे दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। अज़ीर वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती रवाबित डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। सरगोदा से रेस्क्यू किए गए एशियन रीच के इस्लामाबाद में रेस्क्यू सेंटर मुंतकिली के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जानवरों पर जुल्म को रोका जाएगा। उन जंगलों तक इन जानवरों को ले जाया जा रहा है और जो लाचार हो चुके हैं, जिनकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं या जिनके पर कट चुके हैं, जो दोबारा परवाज़ नहीं करते, जो इंसानी जुल्म की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, उन पे इंसानों को उनकी खिदमत पे मामूर किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उनको कम से कम जो भी नुकसान हुआ वो तो हुआ, मगर वो ज़िंदा तो रह सकें। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से IIMCT रेलवे जनरल अस्पताल रावलपिंडी के डॉक्टर्स के वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में अस्पताल की मौजूदा सहूलतों और मरीजों को फराहम की जाने वाले इलाज मुआलजे की सहूलतों पर बातचीत हुई। वज़ीर रेलवे ने अस्पताल में मरीजों को जदीद सहूलतें फराहम करने की हिदायत की।
तख्फीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह से चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा BISP गरीब और नादार लोगों की मदद के लिए एक वकीदुल मिसाल इदारा है। प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक़ अफराद की फलाह व बहबूद के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जामे सोशल प्रोटेक्शन नेट के क़याम के जरिए गरीब गुरबत का खात्मा और मुआशरे की पसमानदा और कम मराज याफ्ता तबके बिलखुसूस ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। शोबा सेहत के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुख्तार भरत के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हिफाजती टीकों की मुहिम समेत अहम इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत और तमाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल रिपोर्टिंग यकीनी बनाएंगे। उन्होंने देही इलाकों में हिफाजती टीकाजात के लिए अमले की कमी को पूरा करने के लिए वैक्सीनेटर्स भर्ती करने की भी हिदायत की। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में रवा माली साल की टैक्स वसूलियों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 मार्च 2025 तक सूबे में 1,31,000 मिलियन रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूली हो चुकी है। इजलास में बताया गया कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 350 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, जिसमें से मार्च 2025 तक 2,04,000 मिलियन रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% ज्यादा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज का इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कोई भी सरकारी ऑफिसर या मुलाज़िम रियासती बयानी से इन्हिराफ नहीं कर सकता। रियासत मुखालिफ अनासिर को बैड गवर्नेंस तकरीयत देती है, जिसका सद्देबाब जरूरी है। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम जरूरी है ताकि गैर फाल अफसरान के खिलाफ जबरी रिटायरमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सके। इजलास में 28 महकमों के 428 मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ हुआ, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी कार्रवाई की हिदायत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुल्क में चीनी की पैदावार, तलब और रसद से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा न कराने पर खुराक, सनत व पैदावार और तिजारत के वफाकी सेक्रेटरीज को कल तलब कर लिया। कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के माली साल 2022-23 और 2023-24 के ऑडिट एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। तिजारत से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास मोहम्मद जवाद हनीफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2013 का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में धातुओं और स्टील से बनी मसनूआत, प्रोसिक्यूशन फैसिलिटेशन स्कीम का इतलाक न होने से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया गया। कमेटी के चेयरमैन ने इस बारे में FBR के नए SRO के इजरा के बाद बंदरगाह पर 1000 कंटेनर्स के फंसे होने पर तशवीश जाहिर की। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियात से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास मुनज़्ज़ा हसन की सदारत में हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर मुमलिकत शज़रा मनसब ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा दुनिया के पहले 10 मुल्कों में शामिल है। इस चैलेंज से निमटने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर आलमी बरादरी के ताउन से काम जारी है। कमेटी ने इस्लामाबाद में माहौलियात, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर अदम इत्मीनान ज़ाहिर किया। मुआवनी खुसूसी तारिक फातमी और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लार्स लोके रासमुसन के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा और कसीरुजहती ताउन पर मबनी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुआवनी खुसूसी ने इस मौके पर कहा कि डेनमार्क पाकिस्तान के लिए एक अहम शराकतदार है और ये हौसला अफजा बात है कि डेनमार्क की सरकर्दा कंपनीज पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी रखती है। उनका ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में दोनों ममालिक की मौजूदगी आलमी सलामती के कलीदी उमूर पर बाहमी ताउन के लिए एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी तरक्की के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया। मुआवनी खुसूसी ने डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सानेह जाफर एक्सप्रेस और दहशतगर्दी के दूसरे वाक़यात के खिलाफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वॉक का एहतमाम हुआ। वॉक के शुरका ने सानेह जाफर एक्सप्रेस और दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सानेह जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के दूसरे वाक़यात और बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी के खिलाफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा नफ्सियात के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनकाद हुआ।
वॉक का मकसद सानहा जाफर एक्सप्रेस और दहशत गर्दी के दूसरे वाक़यात में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करना और दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की मजम्मत करना था। असातिज़ा का कहना था कि शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि इसके नफ्सी महर्रिकात को ख़त्म किया जाए। इसके सोशियो इकनॉमिक पहलू तो हो ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल पहलू हैं उस पर काम करने का जो बीड़ा उठाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी ने, ये बहुत काबिल तहसीन है। साइको सोशल डायनामिक्स है रेडिकलाइजेशन की, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है और इदारे जो हैं वो उन डायनामिक्स पे गौर करें और कोशिश करें कि कम्युनिटी में लोगों को इस तरह से इंगेज किया जाए कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, लोग उनको एक्सेप्टेंस दे सकें। तलबा ने शोहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इसके जो फैक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो सोसाइटल सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, उन पर नज़र दी जाए और एक साइकोलॉजी की नज़र से देखा जाए कि एक इंसान ये फैसला क्यों करता है कि उसके आइडियोलॉजी या उसका मुतालबा पूरा करने के लिए एक दूसरे इंसान का कत्ल लाजमी है। हम उनके इस दुख में बराबर की शरीक हैं। कोई बलोची, कोई पंजाबी, ये सब हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये जो सानिया हुआ है हम सब उसके लिए दिल से हमें अफसोस है। शुरका का कहना था कि अमन वॉक मुल्क को अमन व आश्ती का गहवारा बनाने के लिए शऊर और आगही को फरोग देने की कोशिश है। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के रमज़ान बाजारों में अवाम को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। तफसील बता रही हैं अनीता अजीज। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस मुकद्दस महीने में इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। वहीं फलाही तंजीमें और मुखय्यर हजरात मुस्तहिक़ अफराद के लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम करते हैं, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रोज़े वगैरह भी पूरे 30 दिन ये सहरी भी करवाते हैं, अफ्तारी भी करवाते हैं और अल्लाह पाक इनकी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। हम गरीबों को ये सहारा बने पड़े हैं। गरीब बंदे घर भी इफ्तारी नहीं कर सकते, जो जिनकी इतनी हैसियत नहीं है वो यहाँ पे आके रोज़ा सैर भी कर सकते हैं और इफ्तारी भी कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में नेकियां कमाने के लिए मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुस्तहिक नादार अफराद के लिए बड़े पैमाने पर अफ्तार का बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि रोज़ादारों को रोज़ा अफ्तार करवाने का सवाब हासिल किया जा सके। रमज़ान दस्तरख्वान खिदमत खल्क का एक अजीम सिलसिला है। अगर हम सब इस जज्बे के तहत ज़रूरतमंदों की मदद करें तो कोई भी शख्स भूखा नहीं सो सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल अफ्तारी और सहरी दोनों इंतज़ाम करते हैं। तकरीबन ये रोज़ के अफ्तारी में और सहरी में 600-700 अफराद हो जाते हैं। तकरीबन ये हमारे दादा अबू ने काम स्टार्ट किया था और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी हम ये ऐसे ही करते रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम करने वालों की ख्वाहिश होती है कि उनके दस्तरख्वान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़ा अफ्तार करें और उनकी नेकियों को कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाए। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। गवर्नर हाउस कराची में मारूफ आर्टिस्ट वासिल शाहिद की खूबसूरत खत्ताती की 3 रोज़ा नुमाइश हुई। अहवाल बता रही हैं आयशा आफरीन। खत्ताती सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि मुसलमानों की सकाफत और अकीदे की तर्जुमान है। गवर्नर हाउस कराची में 23 मार्च की निस्बत से होने वाली इस नुमाइश में फन खत्ताती के 23 फनपारे पेश किए गए। पाकिस्तान टेलीविजन की अजीम शान ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान के दौरान तख्लीक किए जाने वाले इन फनपारों में 12 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। जैसे इस्लाम में फ़न खत्ताती की बहुत अहमियत है, ये हमारी तहज़ीब है। इस तरह पाकिस्तान की बुनियाद में इस्लाम और उसकी तहज़ीब की इसी तरह से बहुत अहमियत है। ये जो हुस्न कागज़ पे आता है, कैनवस पे आता है, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके अंदर मौजूद ना हो। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी समेत दीगर मौज़ूदीन शहर ने शिरकत की और इसके इनेकाद को सराहा। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आज क्योंकि वैसे ही इनका कौमी असम्बली में इनकी ये जो चीज़ें हैं वहाँ गैलरी में लगी हुई हैं, पंजाब असम्बली में लगी हुई हैं और आज इन्होंने हमें इस गवर्नर हाउस सिंध में भी इज़्ज़त बख्शी। वासिल साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने काम को जो है पेश किया है और गवर्नर साहब को भी थैंक यू कहेंगे हम कि उन्होंने माशाल्लाह उनको इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने काम को यहाँ पर जो एक एग्जिबिट करें। एक बहुत खुशी सी सुकून सा लग रहा है यहाँ आकर। इतनी खूबसूरत इनके फन पारे बने हुए हैं और इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी सारी पेंटिंग बनाई है। हमें बहुत अच्छा लगा इस हुनर को देख के और हमें सराहना चाहिए ऐसे टैलेंट को, ऐसे आर्ट को। ये नुमाइश फन से मोहब्बत करने वालों के लिए
ایک یادگار تجربہ ثابت ہوئی، جہاں عقیدت، تاریخ اور جمالیات کا حسین امتزاج نظر آیا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآنی آیات اور اللہ کے خوبصورت ناموں کی یہ خطاطی آرٹسٹ کی مہارت اور اس کی اللہ سے محبت کا واضح اظہار ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسلام آباد کے رمضان بازاروں میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں انیتا عزیز۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے رمضان بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں سمیت چاول، چینی، گھی، آٹا، دالیں اور گوشت عام بازار سے کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کوئی اسکیم کا اعلان کیا ہوا، روز آتے ماشاءاللہ 2-3 پونی لے گیا، اور بہت اچھی بات ہے، ہم زندہ باد وزیر اعظم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان بازاروں کا مقصد عوام کو معیاری اور سستی اشیاء خورونوش فراہم کرنا ہے تاکہ مہنگائی اور منافع خوری کی روک تھام کی جا سکے۔ رمضان شریف میں ہر چیز میں ریلیف ملی ہے، بہت اچھا بازار ہے، اس میں چیزیں اچھی مل رہی ہیں، سستی مل رہی ہیں اور ہمیں بہت اس کا فائدہ ملا ہے۔ سستے رمضان بازار حکومت پاکستان کی ترجیحات کا حصہ ہیں، جن کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انیتا عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاون خصوصی طارق فاطمی اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسن کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ معاون خصوصی نے اس موقع پر کہا کہ ڈنمارک پاکستان کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے اور یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ڈنمارک کی سرکردہ کمپنیز پاکستان میں اپنی موجودگی کو وسعت دینے میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دونوں ممالک کی موجودگی سلامتی کی کلیدی امور پر باہمی تعاون کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی ترقی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ معاون خصوصی نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بیشتر مقامات پر، جبکہ بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر وقفے سے تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد 42، دادو 41 اور مٹھی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا 5واں اور آخری میچ کل ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان نیوزی لینڈ کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ قومی ٹیم نے بیسن ریزرو گراؤنڈ میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کی۔ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے فیلڈنگ کی بھی مشقیں کی۔ پریکٹس سے پہلے کھلاڑیوں نے وارم اپ ڈرلز میں شرکت کی۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹام لیتھم نیوزی لینڈ ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ پاکستانی نژاد محمد عباس بھی پاکستان کے خلاف ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچز کی ایک روزہ سیریز کا آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔ پہلا میچ نیپیر میں کھیلا جائے گا، جبکہ سیریز کے دیگر میچز 2 اور 5 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی ٹرافی لومینارا کا سفر جاری ہے۔ ٹرافی مختلف شہروں کے سفر کے ساتھ ساتھ ملک کے تاریخی مقامات کی تشہیر کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی نمکی کان فیوڑا اور قدیم سیاحتی مقام کٹاس راج میں ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں 360 فٹ سے بلند ہیلی پیڈ پر ٹرافی رکھ کر شائقین کو دنیا کے سرسبز و شاداب اور خوبصورت ترین شہر اسلام آباد کا نظارہ بھی کرایا گیا۔ ٹرافی رونمائی کے ہر مقام پر شائقین نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائیں اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے لاہور میں کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ خواتین کرکٹرز ہیڈ کوچ محمد وسیم کی زیر نگرانی پریکٹس کر رہی ہیں۔ چوتھے روز کھلاڑیوں کو بالنگ اور بیٹنگ سکلز بڑھانے سے متعلق تربیت دی گئی۔ خواتین کھلاڑیوں کے درمیان پریکٹس میچ بھی کھیلا گیا۔ تربیتی کیمپ 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز کا آغاز 9 اپریل سے لاہور میں ہو رہا ہے۔ AFC ایشین کپ 2027 کوالیفائرز میں پاکستان اور شام کے درمیان میچ آج الاحسا میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ قومی فٹ بال ٹیم نے الاحسا میں ہیڈ کوچ سٹیفن کانسٹنٹائن کی زیر نگرانی تربیتی سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر بھرپور توجہ دی۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں ٹینس کے حوالے سے۔ میامی اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ٹیلر فرٹز، ٹامس مہاج، جیکب مینسک اور ایڈم بالٹن بھی اپنے میچز میں کامیاب رہے۔ فلوریڈا میں جاری ایونٹ کے تیسرے راؤنڈ میں فرانس کے آرتھر فیلز نے امریکہ کے فرانسس تیافو کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ فیلز نے تیافو کو 7-6، 5-7 اور 6-2 سے ہرایا۔ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے آسٹریلیا کے جارڈن تھامسن کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی کیا۔ امریکہ کے ٹیلر فرٹز نے کینیڈا کے ڈینس شپوالوف کو شکست دی۔ فرٹز نے شپوالوف کے خلاف 7-5 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کی۔ اس سے پہلے کھیلے گئے میچز میں جمہوریہ چیک کے ٹامس مہاج اور جمہوریہ چیک کے جیکب مینسک نے کامیابیاں حاصل کی۔ میامی اوپن ٹینس خواتین سنگلز میں امریکہ کی کوکو گاف کا سفر تمام ہو گیا۔ پولینڈ کی میگدالینت اور بیلاروس کی آریانا سابالینکا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ فلوریڈا میں جاری ایونٹ میں انسیڈڈ میگدالینت نے 3rd سیڈ کوکو گاف کو 6-4 اور 6-4 سے مات دے کر لاسٹ 8 میں رسائی حاصل کی۔ اگلے مرحلے میں لینت کا مقابلہ اٹلی کی جیسمین پاولینی سے ہوگا۔ پاولینی نے جاپان کی نامی اوساکا کو 3-6، 6-4 اور 6-4 سے زیر کیا۔ امریکہ کی ڈینلی کولنز کو عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آریانا سابالینکا نے اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ سابالینکا نے مقابلہ 6-4 اور 6-4 سے اپنے نام کیا۔ کوارٹر فائنل میں سابالینکا اور چین کی کن ونگ جینگ مد مقابل ہوں گی۔ ونگ فوائل ورلڈ ٹور مراکش سیزن کا افتتاحی مقابلہ فرانس کے میتھیس گیو اور اٹلی کی میڈالینا سپانو نے جیت لیا۔ داخلہ مراکش میں ہونے والے ایونٹ کے مردوں کے ڈویژن میں 3 مرتبہ کے ونگ فوائل ریسنگ ورلڈ چیمپئن میتھیس گیو نے کامیابی حاصل کی۔ کوالیفائنگ میں ٹاپ پر رہنے والے گیو کو پولینڈ کے کامل اور اٹلی کے فرانسیسکو نے سخت مقابلہ دیا۔ گیو کو فائنل جیتنے کے لیے 1 ریس کی ضرورت تھی، تاہم پہلی ریس میں گرنے کی وجہ سے ان کی دوسری ریس اعصاب شکن رہی۔ خواتین کے مقابلوں میں اٹلی کی میڈالینا سپانو نے اپنی ہر ریس جیتی۔ ویمنز فائنل میں کئی ابھرتے ٹیلنٹ نظر آئے۔ یونان کی امیلا کوستی نے بہترین کارکردگی کے ساتھ دوسری اور فرانس کی اینیس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ شکریہ شفیق آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ درست ہر وقت بر وقت